So, good evening and welcome everybody to yet another session by Insightful Pediatric SLP. And आज हमारा फोकस है होलिस्टिक अप्रोच फॉर अर्ली इंटरवेंशन इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड यहाँ पे आज हम मेनली वी आर गोइंग टू लुक एट अ लॉट ऑफ टीम बिल्डिंग एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट एज वेल. So आज हमारा पूरा this conversation is going to be bilingual so that we can reach as many people as possible. It is not language ताकि barrier ना रहे. So in any case, if anybody does not pick up something that was discussed in Hindi or English, please put it in the chat box, unmute yourself, पूछिएगा. I will ask the speaker if an interruption is appreciated. आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रियंका सिंह. शी अभी मैम से बात कर रही थी. शी इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ क्रिएटिव माइंड्स इन लखनऊ. She is a rehabilitation psychologist with expertise in clinical rehabilitation psychology, group therapy, holistic wellness, autism spectrum disorder, ADHD, and learning disabilities. Her services include comprehensive psychological assessments, family counseling sessions, as well as parent training programs. Her approach is that of early intervention, identification and intervention, family-centered care with both online and offline modes. हमारे आज दूसरे स्पीकर है मिस्टर स्वास्तिक कुमार. ही इज द सीनियर SLP स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एट क्रिएटिव माइंड्स लखनऊ. He has an expertise in AAC, alternative and augmentative modes of communication. He follows the ComDeal model-based intervention. He has received the award for Excellence in Speech Therapies Award and recognition for innovative speech therapy methods. And he provides training to professionals and effectively guides his team. He will be talking about his team also today. And both professionals I have here today are dedicated to empowering individuals with disabilities and promoting their overall well-being. तो दिस वाज ये उनकी इंट्रोडक्शन थी. मैम प्लीज आप आपकी तरफ से शेयर कीजिए, देन वी कैन स्टार्ट. Yes, thank you so much for a warm invitation. Myself, Dr. Priyanka Singh, having a 16-year experience of the neurodevelopment field. I'm a certified group team leader of ComDeal and proudly said I'm a certified sexuality etiquette trainer itself also, and always promote the evidence-based therapy in Lucknow and promote the evidence-based therapy in India also. और जो मेरे अंदर जो एस्पेक्ट है अर्ली इंटरवेंशन का, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद द कॉमडील बैंगलोर फ्रॉम लास्ट 10 years एंड वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर 10 years फ्रॉम द कॉमडील बैंगलोर. तो ड्यू टू द कॉमडील बैंगलोर हमने समझा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्ली इंटरवेंशन, व्हाई द अर्ली इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टीम अप्रोच. तो आई विल एक्सप्लेन वॉट एवर मैं जो आज आपको बताने जाऊंगी इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ओनली, नथिंग इज फ्रॉम द गूगल एंड बुक. तो हमने जो भी स्लाइड प्रेजेंटेशन तैयार किया है वो मैंने जो लास्ट 10 years से कॉमडील से सीखा है उसी के बेसिस पे मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है. थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल प्लेटफॉर्म यू हैव गिवन मी. थैंक यू सो मच देवपुष्प मैम. ओवर टू यू स्वास्तिक सर. Hello everyone, good evening. I am Swastik Kumar Pahari, a speech and language pathologist from Creative Minds and leading the Department of Speech and Language Pathologist at Creative Minds. With 7 years of experience in the field, I have worked in various parts of India and have been associated with Creative Minds for the past 3 years. And I am the team leader of ComDeal also. I have received National Speech Excellence in Speech Therapist Award and have presented research-oriented papers in conference and webinars, including being a best paper award also. I have also given a talk at IIT Kanpur. My goal has always been to advance our speech fraternity, and I strive to create awareness through my clinical experiences. Apart from speech therapy, I am also sexuality etiquette trainer for individuals with autism spectrum disorder, trained under Dr. Priyanka Singh ma'am. And today's PPT is based on our experience, and I have ensured that the content is clear and informative for all of you. हम आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं मैम. हाँ 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 जी, प्लीज. My screen is visible to you, ma'am.
हाँ जी, इट इज, हाँ अभी स्लाइड शो मोड में गया, एकदम वेरी गुड, प्लीज Okay. कंटिन्यू। So, autism nowadays, autism is the flavor of the month, and number of the cases is increasing day by day. So, what is autism? In brief, autism is a developmental disorder that affects the communication, social interaction, and behavior. Characteristics include building with social interaction, challenges with verbal and non-verbal communication, repetitive behavior and interest, and sensory sensitivity. Increasing awareness and understanding of autism can help provide better support and opportunity for individuals on the spectrum, enabling them to thrive and reach their full potential. Why early intervention matters? Early intervention matters significantly for the individual with autism spectrum disorders since 90% of brain development occurs by the age of 5. This period is crucial for shaping young mind. Research consistently show that every intervention can lead to improved cognitive and language skills essential for the communication, social interaction, and academic success. Early intervention help children with ASD develop social skills such as initiating and maintaining interaction, sharing and cooperation. It is also reduces behavior challenges like a tantrum, aggression, and self-injury by teaching alternative behavior and coping strategy. Furthermore, early intervention enable individuals with ASD to develop independent skills, including self-care, daily living, and vocational skills, setting them up the long-term सक्सेस. हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि छोटा बच्चा जो है कच्चे घड़े के समान होता है और आप उस घड़े को जो भी रूप देना चाहें हम उसको वो आकार दे सकते हैं. Why early matters? Early childhood is a critical period for brain development, and early intervention can harness brain plasticity to drive a positive changes. By intervening early in children with autism spectrum disorder can develop essential skills like communication, social interaction, and problem solving, crucial for future success. Early intervention helps reduce development gaps between children with ASD and their typically developing peers. Research consistently shows that early intervention leads to significant improved cognitive language and social skill. Moreover, studies suggest that early intervention can reduce the need for intense service later in life, underscoring the long-term benefit. और इसका डेटा क्योंकि लास्ट 10 ईयर वी आर रनिंग द कॉमडील अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम. तो 10 साल पहले जिन बच्चों को हमने कॉमडील से डिस्चार्ज किया था, दे आर लिटरली डूइंग excellent in their life. Component of holistic approach, a comprehensive framework. Holistic approach to supporting individual with autism spectrum disorder involve a comprehensive framework with multiple components that work together to promote overall well-being. Key component includes speech and language therapy, develop communication skills including verbal and non-verbal communication, listening and speaking. Occupational therapy enhance daily living skills such as self-care, fine motor skills, and sensory integration. Physical therapy improve gross motor skills, including walking, running, and balance. Sensory integration therapy help individual process and integrate sensory information from their environment. Dietary consideration, a healthy diet and a nutrition plan can help manage symptoms and improve overall health. Environmental modification, tailoring their environment to meet individual need can reduce stress and promote well-being. Alternative therapies, some individuals with ASD may benefit from the music therapy, art therapy, aquatic therapy, or drama therapy. These components work together to provide a comprehensive support system addressing the unique need and promoting the overall well-being of individual with ASD. Why these components matter? Comprehensive support, a holistic approach addresses the individual's physical, emotional, and social need. By addressing multiple areas of need, individual with ASD can experience better outcome and improve quality of life. Increase flexibility, a holistic approach allows for flexibility and adaptability, which is essential for meeting the unique need for individual with ASD. Okay. Next, we talk about these different components. Like first component is speech and language therapy.
Speech and language therapy is a type of therapy that focuses on developing communication skills in individuals with autism spectrum disorders. It aims to improve verbal communication skills like articulation, vocabulary, and sentence structure, as well as non-verbal communication skills like gestures, facial expression, and eye contact. According to my personal experience, I always believe that non-verbal communication is the foundation skills for verbal communication. So, as a SLP, it's our duty to promote the non-verbal communication as well as verbal communication. Additionally, it develops social communication skills such as initiating and maintaining conversation, which is the part of pragmatics, understanding a tone of voice, and interpreting social cues. In speech therapy, technique may include AAC, social story, role playing, pragmatics language therapy, and all to meet the individual needs and goals. Also, we use different stimulation technique also. So, strategies used in speech and language therapy. First, AAC. AAC is a tool such as picture communication, symbols, electronic device to support communication. Social story, which use narrative to teach social skills and behavior. Either the child may be verbal or non-verbal. We always do the social skills with the child using the parallel talk. That is more effective strategy for any child. Next, role play, which allows children to practice social interaction and conversation in a safe and supportive environment. Visual schedule, as we all know that ASD children are more lean towards visual schedules, so which provide a structured and predictable framework for the therapy sessions. The benefits of speech language therapies are clear: improve communication, increase social interaction, and enhance the quality of life. Next component is occupational therapy. Occupational therapy is a type of therapy that helps individuals with ASD develop the skills they need to live independently and participate fully in daily life. As a rehab professional, it's our long-term goal to independent the child. So the goals of OT include developing daily living skills such as dressing, grooming, and feeding, improving fine motor skills such as writing and using utensils and all, enhancing sensory integration, helping individuals process and integrate sensory information from their environment, promoting independence, encouraging the individual to perform tasks on their own. By achieving this goal, OT help individuals with ASD develop the skills and confidence they need to participate fully in daily life and reach their full potential. So strategies used in occupational therapy include task analysis, like breaking down complex tasks into smaller and manageable steps, adaptive equipment, using specialized equipment to help individuals with ASD perform daily tasks, sensory, using techniques such as deep pressure, joint compression, and brushing to help individuals regulate their sensory experiences. The benefits of occupational therapy include increased independence, like helping an individual with ASD develop the skills they need to live independently, improve daily functioning, like enabling individual with ASD to participate fully in daily life, enhanced quality of life, improved overall quality of life by enabling individual with ASD to engage in meaningful activities. As we know about the speech therapy, occupational therapy, but after some type of therapy, parents told us, is our child is ready for school or not? So in during the therapy period, we also mainly focus towards the special education. Special education focuses on supporting students with unique needs. Key principles include individualization, inclusion, integrated students into general education setting, or providing equal opportunities, support, and collaboration. Next is the primary goal of special education is to equip the students with the skills, knowledge, and support necessary to succeed academically, socially, and personally. Now we discuss about the component of special education. The component of special education include assessment, like identifying the individual needs and strength, individualized education program IEP, specialized instruction, accommodation and modification, adjusting the curriculum and environment according to the child's level, related service. The benefits of special education include improved academic outcomes, increased independence, enhanced social skills, and support for families. Next, we discuss about the challenges. Challenges in special education include limited resources,
like funding constant, staffing shortage, or limited access to resource. Stigma and bias: students with disabilities may face negative attitude and bias in educational setting. So best practices in special education include person-centered planning, evidence-based practice, collaboration, and flexibility and adaptability. Being responsive to changing students' need and circumstances. As we mainly focus on speech therapy, occupational therapy, behavior therapy, special education, but now the scenario for autism has changed. Like now, so many research articles show that music therapy, aquatic therapy also important for children with autism spectrum disorder in intervention. So music therapy, these are the very much valuable intervention for individual with autism spectrum disorder, including music therapy. Utilizes music to promote emotional expression, social interaction, and cognition development. Aquatic therapy, conducted in a water-based environment, it provides a calming and supportive settings and reducing stress on joints and enhancing in mobility and flexibility. We can proudly say that in last 1 year, we successfully do the musical therapy and aquatic therapy in our creative minds and see the drastic change in the kids. So, as a SLP and as a rehab professional, I always believe that if is there anything there, we have to go for this. Next, sports therapy, like incorporates physical activity and sports to promote social interaction, teamwork, and communication. Last, communication group provide a supportive environment to practice social skills such as the initiating, maintaining conversation, active listening, and conflict resolution, helping individuals develop meaningful relationship and improve their overall social competence. These therapies can tailor to meet the unique needs and goals of individuals with ASD, promoting their overall development, social interaction, and quality of life. By incorporating this intervention into comprehensive treatment plan, individuals with ASD can experience a significant benefits and improvements in their daily lives. Over to you, ma'am. Family important. The importance of family. Family involvement is crucial for supporting individuals with autism spectrum disorder. Family play a vital role in providing care, support, and advocacy for their loved one. The benefit of the family involvement include increased support. Family member can provide emotional, physical, and financial support, improve outcome. Family involved can lead to better treatment outcome and improve quality of life. Enhance understanding. Family member can gain a deeper understanding of ASD and learn a strategy to support their loved ones. Way to involve family include parental training and education, providing parents with knowledge about the ASD and strategy for support. Family therapy, offering therapy session for family to address challenges and improve relationship. Group, connecting family with other who have similar experience, who can easily understand the pain of the other parents. Collaboration with the professional, working together with the therapy educator and healthcare provider. Self-care, prioritizing their own physical and emotional well-being by involving family in the support process. Individual with ASD can receive more comprehensive and effective care. Family member can play a vital role in supporting individual with autism spectrum disorder by creating a supportive environment, providing a safe and understanding space for their loved ones, developing a communication strategy, finding effective way to communicate with individual with ASD, encourage independence, supporting individual with ASD in developing an independent state. This is the main beauty of our ComDeal program. Because earlier I informed you that I have been associated with the ComDeal from last 10 years. So intensive assessment जो है वो play a vital role for improvement of the child की अगर आप start को दें तो जब जो है कॉमडील के प्रोग्राम में इनरोल्ड हुआ था तो हमने उसको 8 एरिया में असेसमेंट किया था. उसका असेसमेंट ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, एडियल स्किल्स पे, रिसेप्टिव लैंग्वेज, उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे, उसकी कॉग्निटिव लैंग्वेज पे, उसकी सोशल लैंग्वेज पे, उसकी इमोशनल लैंग्वेज पे किया था.
उसके बाद जो है बच्चे का हमने प्लान्ड इंटरवेंशन विद हॉलिस्टिक टीम अप्रोच के साथ शुरू किया, और आफ्टर 5 मंथ बाद डेफिनेटली हमें बहुत सारे एरियाज में काम करना था, जैसे कि बच्चे के आई कांटेक्ट पे, उसके नेम रिस्पॉन्स पे, उसके पूरे प्री लैंग्वेज स्किल्स पे काम करना था। और 10 मंथ के इंटेंसिव अप्रोच के साथ हम देख सकते हैं कि उसकी एज डेफिनेटली बढ़ी, लेकिन उसका जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट वो 68% तक हो गया। तो इस ग्राफ में जो भी 4 नंबर इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे में वो स्किल्स पहले से ही है, 2 इंडिकेट कर रहा है कि वो स्किल्स बच्चे में इमर्जिंग है या इनकंसिस्टेंट है, 3 इंडिकेट कर रहा है कि बच्चा स्पेसिफिक सिचुएशन में करता है, कि बच्चा वो एक्टिविटी थेरेपिस्ट के साथ करता है बट प्रोफेशनल्स के साथ नहीं, या मदर या पेरेंट्स के साथ नहीं करता है, और 0 स्किल्स ये इंडिकेट कर रही है कि बच्चे में वो स्किल्स नहीं है। तो जब भी हम अपनी थेरेपी गोल्स बनाते हैं, तो इस इंटेंसिव असेसमेंट के आज से जो गैप एरिया है बच्चे के साथ, वही गैप एरिया जो है हमारे इंटेंसिव प्लान का हिस्सा होते हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रांगली रिकमेंड द कॉमडील अर्ली इंटरवेंशन मॉडल, कि इतना इंटेंसिव मॉडल मैंने आई हैव नॉट सीन इन 16 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपको जब इंटेंसिव आपका असेसमेंट होगा, तो डेफिनेटली उस इंटेंसिव असेसमेंट के बाद आप इंटेंसिव बच्चे के साथ प्लान बना पाओगे, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, और वैल्यूएशन भी कर पाओगे। तो 3 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले बच्चे का असेसमेंट करना, बेस्ड ऑन द असेसमेंट बच्चे का थेरेपी प्लान बनाना, और थेरेपी प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको इवेलुएट करना। So, summary of key points: a holistic approach to supporting individual with ASD is a comprehensive and effective way to promote overall well-being. Key points include comprehensive support like addressing physical, emotional, social needs, individualized approach, tailoring support to meet unique needs and goals, family involvement, empowering families to support their loved ones, multidisciplinary collaboration, working together with professionals to achieve common goals. Raise awareness, educate others about the benefit of a holistic approach. I'm working as an early interventionist. That's why I feeling it's my responsibility toward the society to create a more awareness about the early intervention and early identification. Support individual with ASD, provide a comprehensive and individual support, encourage collaboration, foster collaboration among the professional, family, and individual. Continued research, future research on effective strategy and intervention, improving access to comprehensive support services, empowering individual with ASD and their family. These are the link of our Instagram page, YouTube page. In every month, we to create a more awareness, and हम parents के साथ उनके जो challenges हैं उनके बारे में बात करते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि पेरेंट्स हमसे किस टॉपिक पे सुनना चाहता है, उससे रिलेटेड हम पेरेंट्स के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, सो दैट पेरेंट्स को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड डिटेल में नॉलेज हो जाए। तो these are our center details. At present, we are running a 3 center in Lucknow and 1 center in Gorakhpur. Thank you so much, Devasmita ma'am, for this opportunity. Now we are open for the question answer sessions. आपने बहुत अच्छे से कवर किया व्हाट इज कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड अर्ली इंटरवेंशन। तो ऑडियंस इज ओपन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तब तक आई विल जस्ट स्टार्ट आउट विद अ फ्यू थिंग्स सो दैट ऑडियंस कैन ज्वाइन इन। मैम, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है फॉर म्यूजिक थेरेपी एंड एक्वेटिक थेरेपी, एंड उसका आउटकम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा और बताइए ना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट 2022 में एक्वेटिक थेरेपी मेरे मन में था कि हाइड्रोथेरेपी के बारे में मैंने अपने आप को बहुत ही रिसर्च करा, एंड आई ऑलवेज बिलीव इन अ वेरी नॉन कन्वेंशनल अप्रोच आल्सो, लाइक वी आर यूजिंग iPhone 15 and 16, तो why we are always promoting the conventional therapy.
तो इसके लिए मैंने इंडिया में काफी रिसर्च करिया। तो जीएस प्रशांत जी हैं जो कि एक इंटरनेशनल इक्वेटिक ट्रेनर है, उनसे मैंने कोलैबोरेट किया कि आई एम रनिंग माय अर्ली इंटरवेंशन सेंटर और ऑटिज्म एंड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स के बच्चों में कैसे ये वर्क कर सकता है। तो उसका एक इंटेंसिव ट्रेनिंग होता है। मैंने आपको बताया कि हम अपने सेंटर पे सबसे पहले इनिशियली असेसमेंट पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि जितना अच्छा असेसमेंट होगा उतने अच्छे प्लान बनेंगे और उतना अच्छा आउटकम आएगा। तो हमारे पास ऑक्लेटिक थेरेपी का एक असेसमेंट प्रोटोकॉल है, उसके बेस पे असेसमेंट होता है। जैसे हम जनरली देखते हैं कि स्पेक्ट्रम के बच्चों की लो मसल टोन होती है, उनके ग्रॉस मोटर फाइन मोटर चैलेंजेस होते हैं। मैं आपको आज का ही एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरी एक बच्ची है जो कि जीडीडी के साथ ऑटिज्म है और वो प्रॉपरली चलने में उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या ब्यूटीफुली वो गर्म पानी में मेरे पूल में वो चल रही थी। तो केवल 2 महीने के एफर्ट थे, हार्डली 20 सेशन के बाद थेरेपिस्ट ने उसमें रिमार्केबल चेंज दिखाया। तो डेफिनेटली जो हाइपर एक्टिव बच्चा होता है, जब आप उसको पानी में डालते हो तो हम उसकी हाइपर एक्टिविटी को उसके मोटर मूवमेंट के साथ मीनिंगफुल तरीके से चैनलाइज कर पाते हैं। तो हम वाटर एक्टिविटीज प्लान करते हैं, वाटर के अंदर बच्चों के साथ चैलेंजिंग बोर्ड गेम्स लाते हैं, और वैसे भी बच्चों को पानी के साथ 90% केसेस में बच्चे पानी को बहुत इंजॉय करते हैं। Yes, तो ये yes. मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल 2.5 साल का। और अभी हमारे सीनियर थेरेपिस्ट हैं वो जा रहे हैं मुंबई में कॉन्फ्रेंस में वो पोस्टर प्रेजेंट करने की प्री और पोस्ट क्या रिजल्ट रहे। इन द सेम वे मैं म्यूजिक थेरेपी, मैं सिर्फ म्यूजिक थेरेपी नहीं, चेन्नई में एक नडा इंस्टीट्यूट है जो कि प्रॉपर न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स के बच्चों को कैसे म्यूजिक थेरेपी देना चाहिए उस पे थेरेपिस्ट को ट्रेन करता है। और मैं प्राउडली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो म्यूजिक थेरेपिस्ट ट्रेंड है, एक म्यूजिक थेरेपिस्ट तो रिसर्च कर रही है वहां पे वनस्थली थे कि कैसे म्यूजिक जो है इम्पैक्ट करता है बच्चों के इमोशनल रेगुलेशन को। आपको पता है कि हमारे बच्चों के बिहेवियर इश्यूज होते हैं, उनके स्पीच कम्युनिकेशन के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। तो जैसे मुझे बहुत एंजाइटी है, हम म्यूजिक सुन लेंगे, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, कामिंग म्यूजिक सुन लेंगे तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। म्यूजिक थेरेपी अर्लियर भी यूज होती थी हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। जिस बच्चे फॉर द जो बच्चे ऑडिटरी सीकिंग होते थे या ऑडिटरी डिफेंसिव बिहेवियर होते थे, तो हम उसको रेगुलेट करने की सिस्टम को हम म्यूजिक थेरेपी का यूज करते थे। बट एट प्रेजेंट सिचुएशन में हम म्यूजिक थेरेपी के बच्चे को बिहेवियर इश्यूज को भी चैलेंजेस में यूज करते हैं। हमारे पास सिस्टमैटिक म्यूजिक का प्लान है, हम प्री और पोस्ट असेसमेंट भी करते हैं। हम अपने म्यूजिक थेरेपी के आपके साथ वीडियो भी शेयर कर सकते हैं कि कैसे म्यूजिक थेरेपी बच्चे के साथ वर्क कर रही है। और रिसेंटली हमारे स्वास्थ्य कुमार सर ने सेज है कि म्यूजिक का क्या इम्प्रूवमेंट है बच्चे में, उनकी स्पीच थेरेपी और कम्युनिकेशन में, उसके लिए एक प्लान बनाया है जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरी टीम हमेशा रिसर्च में ओरिएंटेड रहती है कि क्या प्री रिजल्ट है और पोस्ट रिजल्ट। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग सो मच इम्पोर्टेंट टू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आल्सो। And ma'am, as a SLP, I have some literature also, जिसमें जैसे एज ए एसएलपी हम देखते हैं कि बैबलिंग कब होना चाहिए, जार्गन कब होना चाहिए, फर्स्ट वर्ड कब होना चाहिए। अगर आप उस लिटरेचर को आप पढ़ोगे, मैं शेयर कर दूंगा लिंक, उसमें सेम जैसे बैबलिंग जब बच्चे करते हैं, इवन कुइंग भी, वो कैसे डायरेक्टली कोरिलेट विथ म्यूजिक, Yes. वो चीजें। जैसे एक Correct. एग्जांपल दूंगा, मेरा एक बच्चा था जिसमें फर्स्ट वर्ड आ गया था, बट वो 2 वर्ड सेंटेंसेस में आना उसके लिए बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी ड्यू टू, बट हमने देखा कि उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज भी ओके है। बट जब मैंने म्यूजिक थेरेपी का म्यूजिक उस बुक से मैंने 1 से 2 ईयर वाला डेवलपमेंट प्रोफाइल को निकाला और मैंने अपने स्पीच सेशन में उसको इंट्रोड्यूस कराया, विद इन 15 सेशन बच्चा ने 1 वर्ड से 2 वर्ड में आ गया। Correct. सो डायरेक्टली उस बुक में भी मैं लिटरेचर में बताऊंगा कि डायरेक्टली कोरिलेशन है स्पीच थेरेपी एंड म्यूजिक थेरेपी का। और ऑल्सो हम जब बीएसएलपी भी करते हैं, हमने जब पढ़ा होगा राइट हेमिस्फीयर डैमेज और ये सब, वो चीज तो मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी वो सब तो होता है, बट हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम वो एफएजी केस में कर रहे हैं या फ्लुएंसी केस में कर रहे हैं, बट कोई एसडी केस के लिए सोचा नहीं है। तो Correct. ये हमारे दिमाग मेरे दिमाग में आया था कि ये हम करके देखते हैं। और साथ ही साथ में हम सबको पता है कि राइट हेमिस्फीयर हमारा म्यूजिक पार्ट के लिए बहुत स्ट्रांग होता है, राइट। और Yes. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में उनका राइट हेमिस्फीयर बहुत डोमिनेंट रहता है। तो क्यों ना हम अगर उसी चीज को किक करके स्पीच लाएं, मतलब म्यूजिकली थ्रू हम अगर लाते हैं,
तो वो ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। और मैम ने जो इस रिपोर्ट के बारे में बात किया, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखिएगा उस बच्चे का मतलब रिपोर्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आपको दिखेगा कि बच्चे का सारा चीज एज अप्रोप्रिएट है, रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव, इवन प्रैग्मेटिक्स ऑल्सो। मतलब वो एक्सीलेंट परफॉर्मर है, बट जहां इमोशनल वाली पार्ट आती है वो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता है। तो हमने उस पर म्यूजिकल थेरेपी डाला और उसमें ड्रास्टिक चेंज हमने देखा। आपने जो दो चीजें अभी बताई, वन इज कि अपना न्यूरोटिपिकल डेवलपमेंट में भी म्यूजिक का बहुत ज्यादा रोल होता है, इसीलिए हम राइम्स के साथ शुरू करते हैं। और आज का रिसर्च बोलता है कि राइम्स की जगह एक्टिवली प्लीज गाना भी गाइए, नॉट जस्ट राइम्स। जो हिंदी वाले जो हम गाना गाते हैं ना, नॉट जस्ट इंग्लिश वाला सिर्फ जो राइमिंग वाले है, अपना बेसिक मेरा सूरज है तू, चंदा है तू, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है अपने बच्चों को, वन। एंड जैसा आपने बोला, लेफ्ट हेमिस्फीयर डिफिकल्ट है, लेकिन राइट हेमिस्फीयर को अगर हमने यूज किया, जो ज्यादा म्यूजिकली इंक्लाइंड होता है, तो ऑब्वियसली हम जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे हैं, हम उन तक पहुंच ज्यादा सकते हैं बेसिकली। एंड राइट हेमिस्फीयर का अपना जो म्यूजिक का जो ये होता है ना, दूसरा रिसर्च ये भी कहता है, देखिए कि हम लोगों ने अफेजिया के लिए जो न्यूरो एनाटॉमी पढ़ी हुई है, कि one part is responsible for speech production, one part is responsible for speech understanding। काफी सारे जगहों में, स्पेशली ना ब्रेन जिसमें ज्यादा कनेक्शन है, जो ऑटिस्टिक ब्रेन्स में आज देखा गया है, उनमें कंपार्टमेंट्स नहीं है। तो आप जब म्यूजिक यूज कर रहे हैं, आप ब्रेन के कई जगहों को फायर कर रहे हैं, तो वो बच्चा का ऑब्वियस, बच्चा ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा। आप उनसे उन तक पहुंचने की क्या कोशिश कर रहे हैं। सो एक डेफिनेटली। कनेक्टिविटी है वो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक आपके लिए क्वेश्चन आया है, एक मिनट। हाँ, कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ द टाइप ऑफ म्यूजिक यूज्ड, क्योंकि हम उस टॉपिक पे है। हाँ, एक्चुअली मैम देखिए, एक स्पेसिफिक म्यूजिक हम नहीं बोल सकते हैं ओके। कि ये म्यूजिक लगाना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करके, लाइक पियानो, गिटार और इकलेलिया और ड्रम, जो भी मतलब बच्चा का ब्रेन रिसीव करे। तो इसलिए जैसे मैम ने बोला कि म्यूजिक थेरेपिस्ट असेसमेंट करेगा बच्चे का। असेसमेंट के बेसिस पे बच्चे का कौन कौन से म्यूजिकल एरिया स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे वो प्लान बना के वो म्यूजिक यूज कर सकता है। साथ ही साथ जैसे आज ही रिसेंटली ये वेबिनार से पहले मैंने एक बच्चे का सेशन ले रहा था, वो स्टटरिंग बच्चा था, स्टटरिंग एंड रेट ऑफ स्पीच बहुत फास्ट था। तो मैंने ये किया कि वो अपना ब्रेन को सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो मैंने नॉर्मल एक रिलैक्स म्यूजिक लगाया मेडिटेशन पर्पज से। 5 मिनट लगाए, फिर मेरा आगे का पूरा सेशन बहुत कामली और आराम से गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक हम लोग कोई म्यूजिक नहीं कर पाते, लेकिन प्रॉपर म्यूजिकल असेसमेंट के साथ। इसीलिए बोला जाता है ना, स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच का ही काम करे, म्यूजिक थेरेपिस्ट म्यूजिक का काम करे, बट उसके साथ साथ हम अगर एक साथ बैठ के गोल ओरिएंटेड काम करेंगे तो सारा चीज बहुत अच्छे से कनेक्ट होके बच्चे का डेवलप कर सकता है। हमारे सेंटर में कुछ बच्चे जो हैं ड्रम का के साथ काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे पियानो बहुत अच्छा बता रहे हैं, कुछ बच्चे वोकल में बहुत अच्छा। इवन कि एक बच्चा है जिसका भी प्रैग्मेटिक इम्पेयरमेंट है, लेकिन वो वोकल में पूरे पूरे गाने गा रहा है थ्रू द म्यूजिक थेरेपी। तो ये पूरा असेसमेंट प्रोफार्मा डेवलप गया है थेरेपिस्ट के साथ, जो भी उन्होंने पढ़ाई करी है उसकी बेसिस में। क्योंकि जैसे हमें पता होता है ना कि हर लर्निंग स्टाइल अलग होती है, बच्चा विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्टिक है, बेस्ड ऑन द लर्निंग स्टाइल वी आर प्लानिंग द स्पेशल एजुकेशन प्लान। इन द सेम वे म्यूजिक होता है, पूरे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनिशियली असेसमेंट में हमें 1 वीक लग जाता है तो एक्सप्लोर कि बच्चा पियानो में इंटरेस्ट ले रहा है, या ड्रम में इंटरेस्ट ले रहा है, या वोकल में इंटरेस्ट ले रहा है। बेस्ड ऑन द थेरेपिस्ट फिर प्लान करते हैं। और जो भी ये मास्टर्स होते हैं म्यूजिक थेरेपी डेवलप, वो प्रॉपरली वोकल में और इंस्ट्रूमेंट में दोनों ही चीजों में ट्रेंड होते हैं। वो वोकल भी करा सकते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट भी करा सकते हैं, जो नदा इंस्टीट्यूट चेन्नई में है। और हाँ। लकली हमारे पास एक मैम है जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं, तो वो बहुत ज्यादा इस समय अपने आप को डांस में भी, एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी में भी अपनी पीएचडी कर रही हैं। तो बहुत ज्यादा वो एक्सप्लोर कर रही हैं चीजों को, तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके। मेरे लिए और दो तीन क्वेश्चन है, ताकि ऑडियंस को भी अच्छे से समझ में आए।
एक तो स्वास्तिक जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पीच थेरेपी वाली जो स्लाइड थी, आपने एसी के बारे में बात की, आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात किया, लेकिन आपने इमिटेशन मॉडलिंग का नहीं किया। आई एम वेरी हैप्पी आपने एएसडी बच्चों के लिए वैसे प्रेजेंट किया, क्योंकि मॉडलिंग एक्सपेंशन डायरेक्टली काम नहीं करता है, और हम जितना उस पर फोकस करते हैं हम समहाउ पेरेंट को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, क्योंकि हम पेरेंट को दिखा रहे हैं कि हम तो ट्राई कर रहे हैं, बच्चा नहीं बोल रहा है। वेरएज अगर हम एएसी पे फोकस करें, पेरेंट को भी समझ में आता है कि हमको उधर डिमांड और प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चे को। बच्चा वर्बल कर सकता है तो डेफिनेटली बच्चा करेगा, बच्चे का सिस्टम सपोर्ट नहीं देता है तो वेरी गुड। वो वाली स्पेसिफिकली मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, स्पीच पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगी दैट आपने इतना रैशनल स्लाइड बनाया। दूसरा, दो क्वेश्चन आप दोनों के लिए है कि फैमिली काउंसलिंग, फैमिली इन्वॉल्वमेंट के बारे में हम हमको थोड़ा और बताइए कि आप कैसे करते हैं ट्रेनिंग। जैसे रेगुलर प्रैक्टिस में हम काफी सारे फैमिलीज को एनकाउंटर करना पड़ता है, वेर यू हैव 1 और 2 मेंबर्स वर्किंग, या फिर 1 मेंबर बहुत ज्यादा बर्नआउट हो जाता है। डेफिनेटली माएँ हमको ऐसे ही मिलती है, हम ट्राई करते हैं, कभी कभार हो जाता है, कोई और मेंबर स्टेप अप करता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, वो माँ का हालत और ज्यादा ये हो जाता है, क्योंकि हमारा भी डिमांड रहता है कि अब हमको फॉलो करेंगे। तो ये आप फैमिली काउंसलिंग का एक बताइएगा। और आप दोनों का जो स्पेशलिटी है कि आप सेक्सुअल एजुकेशन ट्रेनिंग भी करते हैं ऑन स्टूडेंट्स विद एएसडी, प्लीज उनके उसके बारे में भी बताइए, 2 चीज प्लीज बताइए। ठीक है। फैमिली काउंसलिंग में मैम ये कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, और इस फील्ड में आने के पहले तो मैं प्योर सीबीटी प्रैक्टिस और काउंसलिंग में ही थी। फॉर्चुनेटली मैं इस फील्ड में आई, तो उसकी पहले ये कि मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को एक क्लियर पिक्चर आपके पहले, जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि वीडियोस पहले आते हैं, वीडियोस के बेसिस पे अपॉइंटमेंट लगते हैं कि आपका पहला अपॉइंटमेंट है कि दूसरा अपॉइंटमेंट है। जनरली पेरेंट जो होता है मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में 50% केसेस में बहुत ज्यादा डॉक्टर शॉपिंग करके आता है कि ऑटिज्म करेक्ट। ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो वो एक क्लियर पिक्चर जो है मैं पहले सेशंस में ही उनको देने की कोशिश करती हूँ। मैं उनको यही बोलती हूँ कि ओनली वेयर एंड नो वेयर इज द ट्रूथ पिंचेस। तो आई थिंक आपको मेरे से बात करने के साथ साथ, बिकॉज आई एम रनिंग माई ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन, तो डेफिनेटली आई विल टेल 100% गुड फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, बट जो बाहर बैठा वेटिंग एरिया में पेरेंट्स है, वो कभी भी गलत नहीं बोलेगा। तो आई थिंक आपको उसके साथ भी बात करना चाहिए कि कैसी जर्नी है, कैसी लॉन्ग जर्नी है, कैसी क्या चीजें हैं। और हम पेरेंट्स के मेंटल वेलबींग के लिए बहुत सारे टाइम टू टाइम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे मैंने अभी एक शायद इंस्टाग्राम में एक रील डाली थी कि हु एम आई, तो हु एम आई के लिए कि आप अपना काउंसलिंग, ये भी इंडिविजुअली मदर्स को मैं तो हमेशा प्रमोट करती हूँ मेरे साइकोलॉजिस्ट की, अपने आप को खत्म नहीं करना है बच्चे के साथ, क्योंकि ये एक लॉन्ग जर्नी है। अब उसी में हम सब छोड़ जाएंगे, अपने बाल नहीं बनाएंगे, अपने आप को सजाएंगे नहीं, पार्टी में नहीं जाएंगे, किटी में नहीं जाएंगे, दोस्तों से बात नहीं करेंगे, ये नहीं करना है। क्योंकि अगर कितना भी इंटेंसिव करोगे, यहाँ पे लड़ाई तीन चीज़ की है, बच्चे की, थेरेपिस्ट की, पेरेंट्स की, और बच्चे के ब्रेन की। तो वहां पे ब्रेन भी लड़ रहा है। बहुत सारे सिस्टमेटिकली प्लान के अप्रोच के साथ भी अगर 10 बच्चे स्वास्थ्य सर कॉम्बिन में लेते हैं तो 10 के 10 में एक जैसा इंप्रूवमेंट नहीं होता है। तो वो करेक्ट। सारी चीजें हम काउंसलिंग के थ्रू उनको एकदम क्लियरली बताते हैं। मैं आपको बताऊं 16 ईयर के एक्सपीरियंस में कि मेरे पास अगर 10 बच्चे की ओपीडी है तो 6 बच्चा पहले सेशन में भाग जाता है, लेकिन प्राउडली से कि 6 महीने बाद वो पेरेंट्स फिर वापस आता है कि आपने जितनी ईमानदारी से मुझे चीजें बताई और जिस तरीके से बताई, वो तरीका बहुत ब्यूटीफुल था। मैं पेरेंट्स को हमेशा इंकरेज करती हूँ सपोर्ट ग्रुप बनाने का। कॉमडील में 10 बच्चे, 10 पेरेंट्स है, 10 के 10 पेरेंट्स की अपनी किटी चल रही थी, उनकी डेटिंग चल रही थी, मदर डेट चल रही थी। तो इस तरह के इवेंट हम करते हैं सो दैट पेरेंट्स बर्नआउट ना हो। हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक डांडिया नाइट इवेंट होता है जिसमें ऑलमोस्ट चारों ब्रांच के पेरेंट्स, करीब 400 से 500 पेरेंट्स आते हैं कि फ्री में आओ, आप डांडिया नाइट करो, एंजॉय करो, तैयार हो, क्या हो, आपके बच्चे को हमारे थेरेपिस्ट तैयार संभालेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ होली सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन, कि हम इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन पेरेंट्स का रखते हैं। छोटा सा अभी जैसे हमने कॉमडील का फेयरवेल किया तो स्वास्तिक सर ने प्रॉपरली पेरेंट्स के लिए फन गेम्स एंजॉय करे थे कि पेरेंट्स उसमें म्यूजिकल चेयर करे अपने बच्चों के साथ। तो हम इस तरह के छोटे छोटे मूवमेंट्स लाते हैं कि पेरेंट्स थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल पाए। और हर काउंसलिंग में यही पूछते हैं कि आप कौन है, आप शुभ की माँ, आप किसी बच्चे की मम्मी नहीं हो, एक आप खुद भी एक इंसान हो। ट्राई टू गिव ओनली 30 मिनट ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। तो
मुझे लगता है कि अगर इस ऑनेस्टी के साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए तो मैं डेफिनेटली 90% केसेस में मैं जीत पाती हूँ। ओनली द 10% केसेस में ही जहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें हैं, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज ऑल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस ऑल। बट अगर 90% पेरेंट्स आपसे कन्विंस है तो इट्स अ बिग नंबर। एंड सेकंड बात, मेरा जो एक्सपीरियंस से मैंने देखा, जैसे मैंने कॉमडिल का 3 बैच रन किया है, एक साथ हम 10 पेरेंट्स को संभालते हैं, 10 बच्चों को देखते हैं। तो क्या होता है, जब पेरेंट्स वेटिंग एरिया में बैठे रहते हैं, अरे आपके बच्चे को तो थेरेपी प्लान में ये मिला, आपके बच्चे को तो थेरेपी प्लान में ये मिला, क्यों ना हम ये ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और एक बच्चा इतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो जो नहीं कर रहा है उसका पेरेंट सोचता है कि जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसका थेरेपी प्लान कर देते हैं, बट सारे बच्चे अलग रहते हैं। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमेशा क्रिएटिव माइंड में हम ये करते हैं, प्रेजेंटेशन रखते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिससे हम पेरेंट्स को प्रॉपर गाइड करते हैं कि दिस इज द वे। सब अगर हम पेरेंट्स को डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर पेरेंटल ट्रेनिंग देते हैं तो उनको क्लियरली समझ में आता, नहीं मेरे बच्चे के लिए ये वर्क नहीं करता है, ये मेरे बच्चे के लिए वर्क करता है। साथ ही साथ जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, अगर हम कहीं पे कर रहे हैं कुछ भी, तो हम पूरा अपना वो करते नहीं, मैंने पे किया तो मुझे प्रॉपर सर्विस चाहिए, प्रॉपर मुझे ये चाहिए, मुझे बिल दो, आप ये दो वो दो। तो सेम थिंग्स क्या होता है, जब मैं इनिशियली डेज पे जब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट किया था एज ए एसएलपी, तो जब हमको कुछ बच्चों में रिपोर्ट्स जब हम बनाते हैं, कुछ कुछ बच्चों में उतना प्रोग्रेस नहीं मिल पाता था या कुछ भी होता था, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि अब बढ़ा के दे दो, मतलब आरएलए और ईएलए उसका बढ़ा के दे दो, थोड़ा सा 1-2 महीना आगे करके दे दो, ताकि वो जो प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है कि मुझे सामने भी तो जवाब देना है, वो नहीं करके अगर हम पेरेंट्स को प्रॉपर रिपोर्ट देते हैं, और पेरेंट्स का राइट भी है कि प्रॉपर रिपोर्ट वो समझे जाने, तब जाके वो घर पे कर पाए। अगर हम पेरेंट्स को वो कॉन्फिडेंस दिला पाए कि आप जिस जहां आए हो सही हाथ में आए हो, तो वो आधा स्ट्रेस वहीं पे उनका चला जाता है। नेक्स्ट मैम, सेक्सुअलिटी। Sexuality etiquette का मैम कि we are giving us so much importance to speech, language and sexuality. I'm talking about the sexuality. Why we are not giving it to the genitals and also, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च में जब मैं पीएचडी करती बहुत सारे ऐसे केसेस को देखा कि बहुत सेक्सुअली अब्यूज हो रहे हैं बच्चे। तो बच्चे को आपने, मैं एक बच्चे का सेशन ले रही थी और मेरा हाथ उसके चेस्ट पे चला गया तो वो घबरा गया, यार ये नोज है, ये आईज है, तो ये चेस्ट और ब्रेस्ट क्यों नहीं है, ये जेनाइटल्स में ये वजाइना क्यों नहीं है, ये बटक क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है चीजें। तो ये था सेक्सुअलिटी एटिकेट एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग है जिसको मैंने जब मैं पर्पल फेस्ट में गई तो अनफॉर्चुनेटली जिनके थ्रू मैंने ये ट्रेनिंग ली थी वो नहीं है, क्योंकि बच्ची स्पेशल चाइल्ड थी। तो मैंने बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग ली। उन्होंने कहा कि प्रियंका लेकिन मैं तुम्हारी तरह साइकोलॉजिस्ट नहीं हुआ, कांट बी अ लेसन प्लान, तो आपको लेसन प्लान बनाना है। तो मैं उनके एस्पेक्ट को समझी। तो मैं तो सेक्सुअलिटी एटिकेट ट्रेनिंग के लिए मैं बहुत सारे पार्ट में, मैंने जैसे स्वास्थ्य को भी ट्रेन करा, तो पहले सेक्सुअलिटी टर्म्स क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है इन टर्म्स इमोशनली, इन टर्म्स ऑफ रोमांटिकली, इन टर्म्स ऑफ अदर सेक्सुअल बिहेवियर, उनके बारे में बात की। और मैं अभी बच्चों को सेक्सुअलिटी एटिकेट सिखा रही हूँ कि व्हाट आर द टचिंग रूल ऑफ योर बॉडी, व्हाट आर द क्लोथिंग रूल ऑफ योर बॉडी एंड व्हाट आर द टॉकिंग रूल ऑफ। तो वो मेरा स्पेशल एजुकेशन मैं खुद भी लेती हूँ और मेरे अभी स्वास्थ्य सर भी ले रहे हैं। आई प्राउडली से दैट मैं खुद कहा कि मैम मैं मेल चाइल्ड को सेक्सुअलिटी एटिकेट की ट्रेनिंग देना चाहती हूँ कि जेनाइटल्स भी हमारे बॉडी का एक हिस्सा है, तो हम उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। वो क्या है, हम नोज और ईयर और स्टमक सिखा दे रहे हैं, तो जेनाइटल्स को कौन सिखाएगा, उसकी क्लीनिंग के बारे में कौन सिखाएगा, कल को वो बच्चे सेक्सुअली अब्यूज हो रहे हैं तो उनको कौन सिखाएगा। तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्किंग एज अर्ली इंटरवेंशन। तो अगर बच्चे का पीएलएस सेट है, बच्चे का बॉडी लोकलाइजेशन आ गया है, तो उन सेम बच्चे को ये बताना है कि दिस इज योर बॉडी पार्ट और कैसे इसको आपको कवर्ड रखना है, कैसे अनकवर्ड रखना है। तो एक सिस्टमैटिक हमने प्लान बनाया। आई थिंक इसके लिए तो आपको एक डिटेल सेशंस की जरूरत पड़ेगी कि हम कैसे प्लान करते हैं, क्या सिखाते हैं। बट डेफिनेटली इट्स मोस्ट डिमांडिंग। मुझे लगता है कि इसके बारे में हर प्रोफेशनल को बात करना चाहिए, पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए कि बच्चे का अगर पीएलएस सेट हो गया, अगर उसकी आई कांटेक्ट, नेम, रिस्पॉन्ड, कंप्लायंस तो डे 1 से बच्चे को सेक्सुअलिटी एटिकेट्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए, नॉट अ सेक्सुअल एजुकेशन। जैसे हम ईटिंग एटिकेट्स पे बात करते हैं, टॉकिंग एटिकेट पे बात करते हैं, तो हम सेक्सुअलिटी एटिकेट्स पे भी बात करें, एक एटिकेट्स है। एंड ऐसे एसएलपी मेरे माइंड में तब आया, जैसे हम सबको पता है कि एक एडवांस प्रैग्मेटिक्स का टर्म होता है प्रॉक्सिमिटी, कि जब भी हम किसी से बात करते हैं बच्चे को प्रॉक्सिमिटी के साथ,
तो मैं एक बच्चे को सिखा रहा था, बट स्टिल वो नहीं समझ रहा था, वो मेरे पास आके गोदी में आके। तो एज ए एसएलपी अगर हम अपने सेशन में थोड़ी सेक्सुअल एटिकेट की ट्रेनिंग देते हैं, जो कि मेजर प्रॉक्सिमिटी गोल है, और टॉकिंग रूल्स तो एज ए एसएलपी हम सिखाते हैं, बट हम कभी करेक्ट। उस बारे में बात नहीं करते हैं, उस बारे में बात नहीं करते हैं। और 7 साल तक तो बच्चा आ रहा है, बट उसके बाद जैसे एज ए मेल थेरेपिस्ट मुझे लड़कियों का भी सेशन लेना पड़ता है। मैं मना तो नहीं करूंगा ना कि एब्सोल्युटली मुझे नहीं लेना, सेशन नहीं लेना, या तो करेक्ट। वो सब सारी चीजों को देख के मुझे लगा कि नहीं, सेक्सुअल एटिकेट ट्रेनिंग एज ए एसएलपी भी हमको करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल करनी मेजर चाहिए, कंपोनेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक 10 या 12 साल का बच्चा अगर घर पे कपड़ा नहीं पहनता है, ओके, 10-12 साल का समझिए मेल चाइल्ड है जो मॉम डैड को पुश करते हैं घर पे, तो वो जब प्रॉब्लम होता है ना, तब एज अ बिहेवियर प्रॉब्लम आपको रिपोर्ट की जाएगी और तब आपको आग बुझाने की काम करनी पड़ेगी। एज अगेंस्ट दैट आपने जो ये बोला, आप 6-7 साल की उम्र से आप भी अगर काम करते हो और साइड बाय साइड अगर पेरेंटल एम्पावरमेंट भी आप करते हैं कि क्यों एज अ स्पीच थेरेपिस्ट, एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मुझे भी करना चाहिए, पेरेंट को इस चीज का अंडरस्टैंडिंग पहले से आ जाती है ना, कि हाँ बच्चे का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लो है, या फिर ऐसा बच्चा आप एट 7 और 8 आप समझ सकते हैं कि आप पेरेंट पे काफी डिपेंडेंसी रहने वाला है। हमारा हक है पहले से पेरेंट को ट्रेन करना ना कि ऐसा ऐसा आगे होने वाला है, हम करते हैं तो गुड, वेरी गुड, थैंक यू, आपने ये क्लियर करके दिया। आपके लिए 2 क्वेश्चंस है व्योम तिवारी जी से, मैम व्हेन विल इट बी स्टार्टेड इन द गोरखपुर ब्रांच, और अल्पना मैडम आपको पूछ रहे हैं हाउ डू यू टीच पेरेंट्स टू रिड्यूस बिहेवियरल इश्यूज इन चिल्ड्रन हैविंग एएसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जनरल बड़ा है बट बताइए आप। देखो, गोरखपुर प्लान तो 2 जून से ही शुरू हो गया है, उसकी एड्रेस है वहाँ पे। और एक हमारे राजन तिवारी सर हैं, वो उसकी सेंटर हेड हैं। तो उसकी डिटेल तो इस पीपीटी में है, यू कैन, आप उसको देख सकते हैं और बात कर सकते हैं उसके नंबर पे। और दूसरा ये कि इन टर्म्स ऑफ करना पड़ता है, तो हम बिहेवियर को एड्रेस कर पाए कि बिहेवियर सेंसिटिव बिहेवियर है या स्किल डेफिसिट बिहेवियर है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। तो वो हमें समझ पड़ेगा कि बिहेवियर के पीछे का रीजन क्या है। तो वो थ्रू असेसमेंट ही मैं आपको बहुत गाइड कर पाऊंगी कि बिहेवियर का क्या, वो सेंसिटिव बिहेवियर है कि है या स्किल डेफिसिट है या स्केप बिहेवियर है। तो बहुत सारे बिहेवियर के रीजन होते हैं। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस हेलो। आपका नेटवर्क पूरा चला गया था, ये वाला आंसर प्लीज आप दोनों रिपीट करेंगे एक बार प्लीज। हाँ, मैम क्या होता है कि जब हम एज ए एसएलपी काम करते रहते हैं, कि जब बच्चा स्पीच नहीं एक्सप्रेसिव कर पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, तो उसका बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। उसका रोना धोना और ये सब, वो बचने का भी तरीका करता है। तो फर्स्ट तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हमको प्रमोट करना पड़ेगा, हमको बच्चे का पॉइंटिंग जेस्चर ये सब समझना पड़ेगा। सेकंड थिंग, उसके साथ पैरेलल टॉक जितना हो सके हमको करना पड़ेगा। जी। तीसरी बात, हमेशा क्या होता है, जैसे अगर 4 साल का एक बच्चा है हमारे पास, है ना, बच्चा बोल नहीं रहा है, और इन केस उसने बोल दिया ए फॉर एप्पल, तो हम इसके पीछे पड़ जाते हैं कि अरे बेटा एप्पल बोला तो और एक बार बोलो, एक बार और एक बार बोलो। बोलो, और एक बार बोलो। हम ये नहीं देखते कि बच्चे का एक्सप्रेसिव लैंग्वेज 9 to 10 मंथ्स के अराउंड है। अगर बच्चा 9 to 10 मंथ्स का एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, तो हम अगर उसको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। अगर घर में हमारा 9 से 10 महीने का बच्चा बोलता है, हम कैसे ट्रीट करते हैं, हम अरे वाह आपने बोला, एक खुशी का माहौल छा जाता है। लेकिन 4 साल के बच्चे के लिए हम ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। जब करेक्ट। हमारा बिहेवियर वो वेलकमिंग नहीं रहेगा, तो बच्चा तो बिहेवियर दिखाएगा ही, उसका वो सही बात है। रिडक्शन होगा। और साथ ही साथ जब कोई बिहेवियर हो रहा है, तब हमको उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर जैसे बच्चा गुस्से में है, वो बोल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, और वो दिखा रहा है, हम उसी टाइम पे उसको नो टोका टाकी ये सब कर रहे हैं, दैट इज बहुत ही ज्यादा इशू की बात है। थर्ड चीज, हम सोशल स्टोरीज के थ्रू बहुत सारी बिहेवियर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। वेरी गुड। यस। यस। ओके।
और एक आपके लिए क्वेश्चन है, वेरी नाइस इनिशिएटिव आई मस्ट से, ये सुश्री मीता स्मिता से है। हाउ कैन केयर गिवर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन टिपिकल सेक्सुअल बिहेवियर एंड साइंस ऑफ अब्यूज इन अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स? और आपके लिए और दूसरा एक सवाल है, मैम रिसेंटली आई हैव हर्ड कि कुछ मैग्नेटिक प्रेशर इज बीइंग गिवन टू एएसडी चाइल्ड टू रिड्यूस हाइपर एक्टिविटी, डज इट रियली वर्क? ओके मैम, देखो सेक्सुअल बिहेवियर के लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि सबसे पहले एक बच्चे का लेसन प्लान बनेगा और बच्चे के जेनाइटल्स के बारे में हमें प्रॉपर बात करने की, व्हाट आर द क्लोथिंग रूल ऑफ योर बाइल, कि आपका ओपन पार्ट है, ये आपका क्लोज पार्ट है, कि वजाइना या बटक हमेशा क्लोज ही रहते हैं। तो क्लोथिंग रूल और टचिंग रूल, कि आप कहाँ पे अपनी बॉडी को टच कर सकते हो, क्लोथिंग रूल में आप कहाँ अपने कपड़े बदल रहे हो। टॉकिंग रूल, की अगर आपका जो सेफ एडल्ट हैं वो सेफ एडल्ट ही केवल आपके जो आपके क्लोज पार्ट है उनको टच कर सकते हैं। वो आपको बच्चे को एक मतलब मैंने एक मैम बहुत इंटेंसिव वीडियो बनाया यूट्यूब में, स्वास्तिक सर जो है उन मैं आपको शेयर कर देंगे, आप उस पेरेंट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो उसमें सिस्टमैटिकली मैंने बताया कि कैसे आप अपने बच्चे को सेक्सुअलिटी एटिकेट की ट्रेनिंग दें। तो जो वो आपके जेनाइटल्स हैं, जो आपके कवर्ड पार्ट्स हैं, उसको अगर सेफ अडल्ट के अलावा कोई अनसेफ अडल्ट टच करता है तो उसको आपको कैसे उस बच्चे को नो बोलना सिखाना है, क्योंकि हमारे बच्चे को, स्पेशल चाइल्ड को, हर चीज हमें सिखानी पड़ती है विद द सिस्टमैटिक प्लान। तो पूरे प्रोसीजर के साथ आप उसको सिखाओगे तो डेफिनेटली वो आपको बता पाएगा। और इनिशियली अगर आपका बच्चा जो है आपको जज करना है, जो अभी स्वास्थ्य सेने का कि एक सोशल स्टोरीज के थ्रू भी आप उसके, अगर आपको लगता है, आपको ये एजम्पशन है कि बच्चे को कहीं सेक्सुअली अब्यूज किया गया, तो आप एक सेक्सुअल अब्यूज के साथ, एक सोशल स्टोरीज के साथ भी आप उस प्रॉब्लम को उस बच्चे से निकाल सकते हो। क्योंकि मेरी ड्यूरिंग माई क्लिनिकल प्रैक्टिस एक केस था जिसको 3 महीने से मैं बहुत परेशान थी। वो बच्चा बच्चा जो है हर समय बड़ा डरा और सहमा रहता था मेल पर्सन से, फीमेल के साथ वो बहुत कंफर्टेबल रहता था। हमें टोटली नॉन वर्बल बच्चा था, हमें समझ में नहीं आया। एक दिन हमने उसको अपने सेंटर पे वॉशरूम में भेजा, तो बच्चे को जैसे ही आया ने शूशू छुआ, उसने बोला बाबा। फिर हमने पूरा सोशल स्टोरीज बनाई, बाबा का फेस बनाया, वो बनाया, तो उसने जहाँ पे राइट लगाया तो उसने हमें बताया कि उसके बाबा जो है उसको सेक्सुअली अब्यूज करते थे, ओरल पेनिस्ट्रेशन था या उसके जेनाइटल्स को टच करते थे। तो दीज आर द सिस्टमैटिक मेथड जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को ये चीजें सिखा सकती हो। अगर इसमें कोई भी पेरेंट्स है, प्रोफेशनल है, आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप प्लीज मेरा जो सेक्सुअलिटी एटिकेट का वीडियो है उसके वो आप उसको देखिए। उसमें बहुत मैंने सिस्टमैटिकली तरीके से ये बात की है कि आप बच्चे को कैसे सेक्सुअलिटी एटिकेट की ट्रेनिंग दे सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग मैम, अगर हम अपने आप को जान जाते हैं कि हम कौन है, हमारे लिए कंफर्ट पर्सन कौन है, हमारे लिए कि अनकंफर्टेबल पर्सन कौन है, अगर हम ये चीज जान लेते तो अगर सेक्सुअल एब्यूज ऐसा हो रहा है तो वो चीजें थोड़ी कम भी हो सकती है। जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी हम बच्चे का एक बुक बना सकते हैं, माई माई बुक, जिसमें बच्चा अपने वो खुद डिसाइड करेगा कि उसके लिए कौन सेफ एडल्ट है, कौन नॉन सेफ एडल्ट है, तो उससे भी उसका ये चीजें कवर हो सकती है। एंड सेकेंड थिंग मैम, जो मैग्नेटिक थेरेपी के आप बारे में बोले, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, सो मैं उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं दे सकता। हाँ मैम, मतलब कोई भी थेरेपी के लिए पहले हमें एविडेंस देखना चाहिए, देयर इज एनी एविडेंस अबाउट द मैग्नेटिक थेरेपी। उसके बाद में हमें भी बहुत आइडिया नहीं है मैग्नेटिक थेरेपी का। हमें बायोमेडिकल इंटरवेंशन का आइडिया है, मुझे है थोड़ा आइडिया, बट मैग्नेटिक थेरेपी का नहीं है आइडिया। मैम आप म्यूट। आप म्यूट हो मैम। स्वास्थ्य जी, इज इट पॉसिबल कि मैम जो ये यूट्यूब वीडियो की बात कर रहे हैं वो आप उसका लिंक चैट बॉक्स में दे सके? इज इट हाँ पॉसिबल? तो हाँ, अभी एक मैं देखिए, 1 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं देख। एक मिनट हाँ मैम। जी। एक आपको क्वेश्चन आया है, कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश? मैंने उनको पूछा है दैट विच एग्जैक्ट पार्ट आपको यू वांट इन इंग्लिश। देखते हैं इफ वी गेट अ रिप्लाई।
मैम हमने लिंक शेयर कर दी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो तो एवरीबडी कैन वो एक्सेस कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। सो थैंक यू। कैन यू शेयर अबाउट एक्वेटिक थेरेपी? आपका कोई और लिंक या कुछ एक्वेटिक थेरेपी का भी वीडियो हम शेयर कर देते हैं आपसे। हाँ एक जी। मिनट। अच्छा, इंस्टाग्राम में। नहीं, एक्वेटिक का पूरा डिटेल वीडियो। डन। ओके, थैंक यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप जो शेयर कर रहे रिसोर्सेस है, क्योंकि यहाँ से कई प्रोफेशनल्स को कई आइडियाज मिलते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं और ज्यादा। सो थैंक यू। और तो मुझे इसमें कुछ ये नहीं और क्वेश्चंस तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट आपने आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब भी शेयर किया है, तो मोस्टली जिनको भी जरूरत हो दे कैन अप्रोच यू डायरेक्टली ऑल्सो। सो थैंक यू। आप दोनों ने बहुत बढ़िया तरीके से बहुत एस्पेक्ट्स कवर किए और बहुत होलिस्टिकली कवर किया कि एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हर बच्चा बोलेगा, हर बच्चा कवर करेगा। सबके इसके स्ट्रेंथ्स के साथ हमको काम करना है और उन तक पहुंचना हमारा काम है। डिग्री और रिसर्च तो हम करते हैं, उनका उन तक पहुंचना और उनको मदद करना, फैमिलीज को भी सपोर्ट करना हमारा काम है। थैंक यू सो मच। बस एक 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 शेयर आपके साथ ये करना है, किधर गया? सो ये इंसाइटफुल पीडियाट्रिक एसएलपी की तरफ से आपके लिए एक थोड़ा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कि आप आए, इतना इंफॉर्मेशन शेयर किए, एंड मोर ओवर ये इंफॉर्मेशन और मतलब लिंक के थ्रू ये फ्री सेशन है, ये अवेलेबल ही होने वाला है, तो बहुत लोगों को ये हेल्प करने वाला है। दिस इज फॉर यू मिस्टर स्वास्तिक। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। डूइंग दिस, गिविंग आउट करेक्ट इंफॉर्मेशन टू एवरीबडी, टू ऑल स्टेक होल्डर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम करें before parents are snared by some others। ओके ये so मैम, thank you। ये आप सर्टिफिकेट जो है हमारे मेल में शेयर कर दीजिएगा, स्वास्तिक सर के और हमारे। हाँ जी, हाँ जी, ये सर्टिफिकेट्स ये तो आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि सबके सामने आपको शेयर करी हो, तो पर्सनल आप तक पहुंच ही जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बट फॉर हमें भी गिविंग बहुत मी मजा दिस। बने। नहीं नहीं, हम थैंक यू सो मच। आप ऑलरेडी यूट्यूब पे इतना कुछ इन्फॉर्मेटिव शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़े और प्रोफेशनल्स तक हम पहुंच पाते हैं तो अच्छा होता है, रेफरल्स के लिए अच्छा होता है। हम देश के कोई भी कॉर्नर में हो, अपने ही देश में भेजना है, रेफर करना है, तो बहुत अच्छा होता है ये। बट यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब मैम। इट इज कोलैबोरेशन। अकेले से कुछ नहीं होता है, हम एक दूसरे का मदद करते हैं तो हम भी बढ़ते हैं, हम सब बढ़ते हैं, आपसे भी सीखने को मिलता है। पेरेंट्स आज जब एक्वेटिक थेरेपी बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ओटी से पूछना पड़ता था, तो आज आपसे बहुत क्लैरिटी मिली कि स्विमिंग और एक्वेटिक थेरेपी में क्या डिफरेंस है। जो एक्वेटिक थेरेपी जिसको फॉर एग्जाम्पल एक्सेस नहीं होता है, अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उन लोग गोल लेते हैं तो वो स्विमिंग कोच के साथ कर सकते हैं, ऐसा मेरे 2 बच्चों का चल रहा है। तो आज आपसे बहुत क्लैरिटी मिली, म्यूजिक थेरेपी का इनसे बहुत क्लैरिटी मिला, तो ऑब्वियसली सब सीखते हैं, सब बढ़ते हैं फिर। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू टू मच। बोथ ऑफ यू ऑल्सो। बहुत बढ़िया सेशन हुआ। ये सेशन रिकॉर्डिंग का भी लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपके भी प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। यस, गुड बाय। नाइट, बाय बाय।